Hi, good morning, everyone. Okay, this is a bit information of the lecture. First flight we are studying, and this is the lecture. So chapter Madam Rides the Bus by Walli Kannan, and this is lecture number 2. So see, everyone, we studied something related to this text about Walli. What we got there, a small girl of 8 years who just has a wish or a desire to have a ride on the bus. बस पर वो राइड करना चाहती है. For this, she makes her plans. Okay, see, she plans. She tries to find out the fare, route, distance, and what sort of problems will be there. She calculates the things and recalculates, plans the things and replans the things. It took a lot of time to her, so many months it took. We can't say it took days. Then ultimately, after just having absolute calculation, she decides that she would go on right. Right? So there what we are going to read in the second where we are going to start. Now you can see on the screen, everyone. If you have the book, you can see in your book also. Well, one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway, which when a small voice was heard shouting, "Stop the bus! Stop the bus!" And a tiny hand was raised commendingly. Now you see, uh, the author is talking कि भाई एक दिन spring day. Spring means क्या होता है? छवि, बसंत. Okay. हाँ भैया. Now see, दोपहर को क्या होता है कि बस जो है अपने पॉइंट से निकलने वाली होती है, पॉइंट ऑफ लिविंग जहां से वो चलती है गांव के, एंड टर्निंग इनटू द मेन हाईवे, और मेन हाईवे के तरफ जो है वो टर्न कर लेती है. व्हेन अ स्मॉल वॉइस वाज हर्ड, और उस समय जो है एक स्मॉल वॉइस मीन्स छोटी बच्चे की आवाज जो है सुनाई देती है कि भाई स्टॉप द बस, कि बस को रोको, स्टॉप द बस. एंड अ टाइनी हैंड वाज रेज्ड, एक छोटा सा हाथ जो है ऊपर की तरफ उठता है इस तरह से. Commendingly means like the girl was confident, courageous enough to take her decision, and she was just leading the commending postures, right? So वो इस तरह से अपने हाथ को उठाती है. She was quite confident. The bus slowed down to a crawl, and the conductor, sticking his head out the door, said, "Hurry then. Tell whoever it is to come quickly." द बस स्लो डाउन मीन्स बस जो है जैसे वो हाथ देती है, आवाज करती है, देन बस जो है स्लो हो जाती है. क्रॉल मीन्स बिल्कुल धीरे धीरे चलने लगती है. एंड द कंडक्टर स्टिकिंग आउट, यू मस्ट सी द कंडक्टर्स अपनी गर्दन बाहर निकाल करके आवाज लगाते हैं, बोलते हैं. सेड हरी अप, जल्दी करो. टेल हुएवर इट इज टू कम क्विकली, और जिसको भी आना है उसको बोलो कि वो जल्दी आए. The conductor talks to the little girl, वो छोटी लड़की से बात करता है. It's me, shouted Valli. Valli shout means जोर से बोलती है कि भाई मुझे ही आना है. I am the one who has to get on. कि मुझे ही आना है, मैं ही अकेली हूँ, मुझे आना है, मुझे ही बस में आना है. She speaks like this. By now the bus had come to a stop, and the conductor said, "Oh really? You don't say so." और बस जो है स्टॉप पर आकर के रुक जाती है. एंड द कंडक्टर उसको देख करके कहता है, "ओ रियली." जब वल्ली ये बोलती है कि आई एम द ओनली वन हु हैज टू गेट ऑन, जब वल्ली बोलती है तो वो उसको इन अ जॉली वे ही टॉक्स के भाई, "ओ रियली, यू डोंट से सो."
क्या तुमने कही है बात? इस तरह से मीन्स जॉली वे में उससे बात करता है, इन अ जोकिंग वे, वी कॉल इट मजाकिया, वो बात करता है उससे. Yes, I simply have to go to town, said Wally. Very confidently, 8 years girl उससे बात करती है कंडक्टर से और कॉन्फिडेंटली उसको बोलती है कि हाँ मुझे ही जाना है टाउन, शहर मुझे ही जाना है. कॉन्फिडेंटली बात कर रही है, 8 years only. Then still standing outside the bus and here's my money. She showed him some coins. कुछ coins. What was the? How much was the fare? Fare कितना था? 35 पैसे. 30 और 35. 30 पैसे. So वो coins दिखाती है कंडक्टर को without getting on in the bus. बस में चढ़ने से पहले. और उसको कमेंडिंगली बोलती है, रिचुअसली बोलती है कि हाँ भाई मुझे ही आना है. और कोयन उसको दिखाती है. फिर कंडक्टर कहता है ओके ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस. कंडक्टर बोलता है कि पहले जो है ना आपको बस में आ जाना चाहिए. देन आई विल टेक मनी फ्रॉम यू, said the conductor, and he stretched out a hand to help her up. और अपने हाथ को आगे बढ़ाता है उसको हेल्प करने के लिए ताकि वो उसको हाथ पकड़ के बस में ऊपर चढ़ जाए. स्मॉल गर्ल, लिटिल गर्ल, नेवर माइंड, she said, I can get on by myself. You don't have to help me. And then Wally talks further with confidence कि भाई never mind, कोई बात नहीं, I can get on by myself, कि मैं अपने आप चढ़ जाऊंगी बस में. You don't have to help me. आपको मेरी हेल्प करने की जरूरत नहीं है. हेल्प करने की जरूरत नहीं है. See the words used here and the confidence that little girl is using while talking to the unknown one, right? Though she had enough information about the bus and the conductor and so many things, the conductor was a jolly sort, fond of joking. Fond of joking means थोड़ा मजाकिया तरह का इंसान था. You must have seen people, किसी का तो मुंह चौड़ा रहता है और किसी का जेस्चर ही ऐसा होता है that seems is about, he or she is about to have a kidding or a joking, और बातों से ही उसको लगता है that the one is just joking. So जो ये कंडक्टर था वो कैसा था कि jolly sort of person था, मजाकिया टाइप का इंसान था, छोटी छोटी बातों पर मजाक करता था. Oh, please don't be angry with me, my fine madam. और कंडक्टर कहता है कि भाई मैडम मुझसे गुस्सा मत हो. Even see, body language also matters. We are reading the words, though we just need to imagine the things, what sort of body language was used between them when the conductor was talking to her, and in reply or asking anything, she was just talking to the conductor. So that sort of thing matters a lot. So वो इस तरह से उसको कहता है कि भाई मेरे से गुस्सा मत हो मैडम, माय फाइन मैडम. इस तरह से मैडम उसको अनाउंस करता है वो. ही सेड, कंडक्टर ने ये बात बोली, हियर हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट. और उसको जो है वली को सीट शो करते हुए कंडक्टर कहता है कि यहाँ पर आपकी सीट है, आप यहाँ पर बैठ जाइए. राइट अप हियर इन फ्रंट, सामने बिल्कुल एकदम से कहता है. एवरीबॉडी मूव असाइड प्लीज, मेक वे फॉर मैडम. और हर किसी को जोर से बोलता है कि दूर हट जाओ सभी के सभी, मैडम को आने दो, मैडम को बैठने दो. What will be the scenario for that little girl? She's 8-year-old girl, or conductor is making such a jolly sort of activity, the words or language he is using, कि देखो रास्ता बनाओ जल्दी से, मैडम को आगे आने दो, बैठने दो. He talks like this. Then make way for madam, मैडम के लिए रास्ता बनाओ. It was the slack time of the day. Slack time means a time when there is not much work. You must see, if you ever have traveled in the buses, you'd find there in the morning or in the evening, you'd find rush there. If you see the noon time, you won't find the rush there, right? You'll get the seats will be vacant, empty it would be. So वो कहता है दिन का ऐसा समय था जिस समय रश नहीं होता है. And there were only 6 or 7 passengers on the bus. और वहां पर केवल वो कहता है कि भाई 6-7 पैसेंजर्स बस के अंदर बैठे हुए थे. नाउ जस्ट इमेजिन द सिनेरियो, 6-7 थे, 25-30 की सीट है, वो बैठे हुए हैं, फिर भी कंडक्टर बोल रहा है कि रास्ता दो मैडम को.
See, jolly sort of person, right? Trying to just amuse the little girl. He was also in a way of thinking like that small girl is just traveling. So she should be surrounded with such an environment where she can feel a bit comfortable. Comfy, we call it, right? Then they were all looking at Valli and laughing with the conductor. और वो जो 6-7 पैसेंजर्स थे सीट्स पर बैठे हुए थे सारे के सारे और हंस रहे थे कंडक्टर के साथ, राइट? जोर जोर से हंसने लगते हैं. दे स्टार्टेड लाफिंग और enjoying the moment basically, क्योंकि सी द कंडक्टर वाज मेकिंग सच अ जेस्चर. वल्ली वाज ओवरकम विद शाइनेस, और वल्ली जो है इस पर थोड़ा सा शर्मा जाती है, शर्मा करके गर्दन नीचे कर लेती है. अवॉइडिंग एवरीवन्स आई. शाइनेस क्या होता है? शर्मा गई ना वो. सो थोड़ा शर्माने के बाद वो गर्दन नीचे कर लेती है और जो पैसेंजर्स वहां बैठे हुए थे उनको अवॉइड करते हुए क्या करती है? एवरीवन साइज, उनकी तरफ देख, उनको अवॉइड करते हुए उनकी आंखों को, शी वॉक्ड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सैट डाउन. क्विकली, तेजी से जो चल के एकदम से उन 6-7 जो पैसेंजर्स थे उनको अवॉइड करके जल्दी से चल करके वो कहाँ चली जाती है? एक वैकेट सीट के ऊपर, खाली सीट के ऊपर जा करके चुपचाप बैठ जाती है. The picture of this text reminds me of the black and white movies in the late 90s actually. If you ever have seen, YouTube is there to help you. Let's start. Continue the next. Maybe start now, madam. The conductor asked, smiling. हंसते हुए कंडक्टर जो है वो छोटी लड़की से पूछता है क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, चल सकते हैं, बस जो आगे जा सकती है. Then he blew his whistle twice. और अपनी जो सीटी होती है वो 2 बार जो है बजाता है. ये सिग्नल्स तो सबको पता है ना. If it goes once, stop, and if it goes twice, go ahead. आगे बढ़ना है, right? And the bus moved forward with a roar. Roar means it refers to the sound of the bus when it starts and goes ahead. जब आगे जाती है ये साउंड को रेफर करता है. बस आगे बढ़ती है. It was a new bus. It's outside painted and gleaming white with some green stripes along the sides. ये नई बस थी भाई. It was a new bus. हाँ भाई. All right, see, जो ये बस थी वो बिल्कुल नई बस थी. It's outside painted, बाहर से वो painted थी. Gleaming, gleaming means चमक रही थी बिल्कुल एकदम से. Outside, outward appearance की जो हम बात कर रहे हैं बस की, white थी with some green stripes. Stripes क्या होती है भाई? Long narrow lines जिसको हम लोग बोल देते हैं. So वो green कलर की उसके ऊपर linings थी. Inside, now see this is what we are coming to know about the bus. ऑथर जो है हमें ये बता रहा है कि भाई बस का विवरण कैसा है, हाउ इट इज. यू माइट गेट अ क्वेश्चन दैट व्हाट सॉर्ट ऑफ बस वाज दैट. यू जस्ट नीड टू एलैबोरेट अबाउट द बस. दीज आर द थिंग्स आर टू बी मेंशन्ड. द ओवरहेड बस शोन लाइक सिल्वर, और उसके ऊपर जो जहां पर वो बैठे थे उसका जब बताया गया एक्सप्लेन कि सिल्वर की थी वो सारी की सारी जो दिखाई गई है, उसके अंदर पट्टियां लगी हुई थी. इनसाइड द बस, directly in front of Valli, above the windshield, there was a beautiful clock. और जहां पर वल्ली बैठी थी उसके बिल्कुल सामने windshield, above the windshield means जहां से वो air is passing through, coming in, उसके just ऊपर वो कहता है कि वहां पर क्या लगी थी? एक clock. This is for the passengers to see the time. Beautiful clock. The seats were soft and luxurious. Valli जो है, she went in the bus first time alone without anyone's help, like family members. So she explains like soft थी जो seats थी और luxurious थी. Luxurious means comfortable, we can say this. Valli devoured everything with her eyes. Devoured means underline कर लो भाई. It means to read or look at something with great interest or enthusiasm.
यानी कि किसी भी चीज को जो है इंटरेस्ट के साथ देखना, इंथुजियाज्म, जोश के साथ देखना, छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करना, समझने की कोशिश करना कि व्हाट इज दिस ऑल। उसने जो बस के अंदर छोटी छोटी चीजें थी, जो बड़ी थी छोटी थी, उन सब बड़े ध्यान से देखना शुरू किया। उसने देखा उनको विद हर आईज, बट व्हेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, लेकिन जब उसने बाहर की तरफ देखना शुरू किया, बाहर की तरफ देखती है, she found her view cut off by a canvas blind that covered the lower part of her window. You know, कि window जो होती है, somewhat some of the windows open like this and some goes like this, right? So यहाँ पर जो explanation है, canvas means like जो glass था उसका, that was covered with the थोड़ा बड़े कपड़े होता है, it's a thick sort of cloth जिसको पेस्ट किया होता है ताकि बाहर की तरफ से जो है दिखाई ना दे अंदर और अंदर का बाहर। इफ यू वांट टू व्यू दैट, यू जस्ट नीड टू पुश इट अप, आप ऊपर की तरफ उसको पुश करना पड़ेगा, देन यू कैन व्यू। सो वहां पर वो बता रही है उसको एक प्रॉब्लम आई कि जो एक कैनवस का कपड़ा था वो उसको जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो, विंडो का जो लोअर पार्ट था नीचे वाला उसको कवर किया हुआ था। सो शी स्टूड अप ऑन द सीट एंड पियर्ड आउट द ब्लाइंड। नाउ यू सी, वो क्या करती है, अपनी सीट के ऊपर खड़ी हो जाती है दैट लिटिल गर्ल, और खड़ी होकर के बाहर की तरफ झांकने लगती है। पियर्ड आउट, ताक झांक करने लगती है, बाहर की तरफ देखती है सारा, अंदर का तो उसने ध्यान से देख लिया। हाउ मेनी मिनट्स वर देयर टू गो टू द टाउन फ्रॉम द विलेज? कैन एनीवन रिमेंबर? 45 minutes. So how many minutes does it take according to you people to just have a glance at the bus inside? Hardly 10 to 15 minutes. You can just do everything inside the bus and can just justify the things, what sort of things are there, right? Then after, you are supposed to look outside. So the same situation was there. She was just looking outside the window. उसने विंडो के बाहर की तरफ देखना शुरू कर दिया। खड़ी होकर के वो देखती है और ओवर द ब्लाइंड, उसके ऊपर से वो देख रही है जो विंडो लोअर डाउन उसने कवर किया हुआ था। द बस वाज नाउ गोइंग अलोंग द बैंक ऑफ अ कैनाल। नाउ कैनाल मीन्स व्हाट? स्मॉल रिवर आप जिसको बोल देते हो, नाला बोल देते हो, सॉर्ट ऑफ थिंग। उसके पास से जो है बस निकल रही है, गोइंग अलोंग द बैंक ऑफ द कैनाल, उसके किनारे से निकल रही है। द रोड वॉज वेरी नैरो। नैरो मीन्स तंग रोड था, यानी कि दो गाड़ियां अगर निकल रही है, दैट वन हैज टू वेट, स्टॉप एंड देन गो स्लो, नॉट फास्ट। नैरो, बड़ा तंग रोड था। ऑन वन साइड देयर वाज द कैनाल, एक साइड तो कैनाल थी, एंड बियॉन्ड इट पाम ट्रीज, और दूसरी तरफ जो है पाम के ट्रीज लगे हुए थे। ग्रासलैंड, डिस्टिंक्ट माउंटेन्स एंड द ब्लू स्काई। अब देखो वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है पूरा पूरा कि भाई एक साइड तो कैनाल थी, दूसरी साइड जो है छोटे छोटे पहाड़ थे, माउंटेन्स थी, ग्रास थी, वो सारा इन ऑल दैट उस पर्टिकुलर एरिया के बारे में बता रहा है, और ऊपर जो है ब्लू स्काई। ऑन द अदर साइड वाज अ डीप डिच, और एक साइड डीप डिच। डिच मीन्स क्या होता है? खाई, गहरी खाई थी दूसरी तरफ। एंड देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड। नाउ यू सी, एक ही जगह नहीं है, बस आगे बढ़ती जा रही है, वो सिनेरियो बता रही है कि भाई बाहर की तरफ वो सिनेरियो कैसा था। बस आगे बढ़ती रहती है, एक बार कैनाल दिखाई देती है, माउंटेन्स दिखाई देते हैं, फिर कुछ दूर आगे बढ़ती रहती है, देयर इज अ डिच, डीप डिच, गहरी खाई जो थी वहां पर, और फिर ग्रीन फील्ड्स, हरे भरे खेत दिखाई देते हैं उसको। ग्रीन 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 एज फार एज द आई कुड सी, और इतने ग्रीन थे, वो कहती है कि भाई जहां तक मेरी आंखें जा सकती थी, मैं देख सकती थी, मुझे हरियाली वहां पर दिखाई दे रही थी। और इट वाज ऑल सो वंडरफुल, और ये सब कुछ इतना सुंदर था, बिकॉज शी वाज जस्ट लुकिंग दिस फर्स्ट टाइम, पहली बार वो जो है इसको देख रही थी। Suddenly she was startled by a voice. Startled means चौंक जाना एकदम से। Listen child, said the voice, you shouldn't stand like that, sit down. एक आवाज आती है कि listen child, बच्चा देखो, तुम्हें इस तरह से नहीं खड़े होना चाहिए। Startled means होता है चौंक जाना एकदम से, स्तंभ रह जाना।
startled by the voice, जो ये voice आई उसको देख करके, you shouldn't stand like that, तुम्हें इस तरह से नहीं खड़ा होना चाहिए बस में, sit down. You see the scenario basically, when the girl was standing, she could meet with an accident also. When bus starts or goes or pick up the race or like slow down or like so many situations are there. That's why someone stopped her for staying. Sitting down, she looked to see who had spoken. अब वो बैठ जाती है वल्ली, और बैठने के बाद वो ये कोशिश करती है देखने की कि भाई ये किसने बोला, किसकी हिम्मत हुई मुझे ऐसा बोलने की. Is it possible she can think like this? नहीं ना. She was just thinking, who's the one who's having concerned, जो कि concerned है मुझको लेकर के. There can be different way of thinking about this situation. Though she thinks कि भाई किसने बोला मुझे, it was an elderly man who had honestly been concerned for her. ये एक बुजुर्ग आदमी था जो उसको लेकर के बड़ा कंसर्न मीन सचेत था इस चीज को लेकर के कि नथिंग शुड गो रॉन्ग. If she stands like this, she might meet an accident, right? And that can hurt her. And that's a small girl, 8 years old only. But she was annoyed by his attention. लेकिन वो उससे नाराज थी, गुस्सा थी उससे, नाराज थी कि भाई उसने जो है उसकी तरफ इतना ध्यान क्यों दिया और उसको क्यों बोला कि अभी तुम बैठ जाओ. There's nobody here who's a child, she said. और ये दिखने के बाद कि किसने बोला, और मुड़ करके वल्ली कहती है कि यहां पर कोई बच्चा नहीं है. किस बात पर बोला? लिसन चाइल्ड. उस ओल्ड मैन ने जब ये यूज किया था वर्ड लिसन चाइल्ड, और उस पर वल्ली क्या जवाब देती है कि देयर इज नोबडी हियर हु इज अ चाइल्ड, यहां पर कोई बच्चा नहीं है. हॉटिली, हॉटिली मीन्स प्राउडली, और मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंटली बोलती है, बिल्कुल इंकरेजिंगली वे में कि यहां पे कोई बच्चा नहीं है जो आप बोल रहे हो. आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरीवन एल्स. मैंने भी अपने 30 पैसे दिए हैं जिसने जो सबने दिए हैं. अब ऐसे नहीं है तुम बड़े हो तुमने ज्यादा दिए हैं. कैन एनीवन टेल मी द फेयर ऑफ द बस इज फ्री फॉर हाउ मेनी ईयर ओल्ड चाइल्ड? 2, 3, 4, 5. 5 year. If the baby is 5 year, then there is no fear, huh? You must have been through this. When we used to be, buses were there very less in number, but now it is very huge. All right, let's see. अब वल्ली हॉटिली ये एक्सप्रेस कर देती है अपना एक्सप्रेशन. द कंडक्टर चिम्ड इन, ओह सर, but this is a very grown up madam. Chimed in means होता है to show time by making ringing or sound, और इस तरह से उसको दिखाना, एक्सप्रेस करना that the one is just making a kind of joke. थोड़ा जोकिंग वे में कहता है but this is a very grown up madam, और उसी की बात में एडिशन करते हुए कंडक्टर कहता है कि भाई ये बहुत ग्रोन अप मैडम है, आप इसको बच्चा नहीं बोलना चाहिए. Sorry. Do you think a mere girl could pay her own fare and travel to the city all alone? क्या लगता है आपको कि एक छोटा बच्चा अपने पैसे खुद पे करता है और सिटी में ट्रेवल करने के लिए जाता है, वो भी अकेला? क्या लगता है आपको? ये ग्रोन है, ये मैडम है, ग्रो कर चुकी हैं, मैडम है. सी, with the help of the words, he is supporting the little girl, but the body language is just making a bit jolly environment there, right? And simultaneously, you see the other people who were there, they were just enjoying the moment, enjoying the scenario which was just taking place in the bus. They were enjoying that. See the next, Valli shot an angry glance at the conductor and said, I'm not a madam.
Can anyone speak this line in such a sentence, tone and intonation in which Valli talks? Valli जो है short and angry glance, गुस्से में उसकी तरफ देखती है. Gestures जो है उसके बड़े different होते हैं, right? और कंडक्टर को कहती है, I'm not a madam, मैं मैडम नहीं हूँ. बड़े गुस्से में देखती है उसकी तरफ, कंडक्टर की तरफ. Please remember that, and you have not yet given me my ticket. और उसको रिमाइंड कराती है कि याद रखो कि तुमने मुझे अभी तक मेरी टिकट भी नहीं दी है. पैसे ले लिए हैं, टिकट नहीं दी अभी तक. रिमाइंड कराती है कंडक्टर को वल्ली. द जेस्चर वाज अ बिट एंग्री. I'll remember, the conductor said, mimicking means सेम वैसी टोन में बात करता है, इंटोनेशन में बात करता है जिस इंटोनेशन में वल्ली बात कर रही है. हर टोन. Everyone laughed and gradually Valli too joined in the laughter. अब बस में 6-7 जो पैसेंजर बैठे हुए थे वो हंसने लगते हैं और थोड़ी देर के बाद वल्ली भी उन सबको ज्वाइन करती है और वो भी जोर जोर से हंसने लगती है. She starts laughing. वो भी हंसने लगती है. The conductor punched a ticket and handed it to her. अब कंडक्टर जो है टिकट को पंच करता है और उसको टिकट को उसको दे देता है, वल्ली के हाथ में दे देता है, हाथ में रख देता है. Handed it to her. Just sit back and make yourself comfortable. Why should you stand when you have paid for a seat? और किसी भी बात को कहने के कई तरीके होते हैं. अब उसी बात को कंडक्टर दूसरे तरीके से कहता है, जिस बात को उस ओल्ड मैन ने कहा था कि भाई आपने जो है पैसे पे किए हैं, जब आपने पैसे पे किए हैं, आपने फेयर पे किया है, तो व्हाई डोंट यू जस्ट सिट डाउन? क्यों नहीं आराम से बैठते रिलैक्स्ड मोड में? खड़े होने की क्या जरूरत है? उसका मीनिंग ही चेंज कर दिया व्हेन शी वाज स्टैंडिंग, उस सिनेरियो का कि भाई जब आपने पे किया है तो आप बैठो आराम से सीट के ऊपर, खड़े होने की क्या जरूरत है, राइट? So scenario was changed because I want to. She answered standing up again. दोबारा से खड़े होती है वो कहती है वो कि भी मैं चाहती हूँ कुछ. वो अभी एक्सप्लेन नहीं किया. आंसर करते हुए कहती है, खड़े होते हुए कहती है, standing up again. But if you stand up on the seat, you may fall and hurt yourself. अगर आप जो है सीट के ऊपर खड़े हो जाते हो and hurt yourself, आप जो है नीचे गिर जाओगे. fall, you may fall and hurt yourself, तुम इंजर हो जाओगे, जख्मी हो जाओगे. when the bus makes a sharp turn and hits a bump, जब बस जो है शार्प टर्न लेती है, आगे पीछे होती है, then it can hurt you. that's why we want you to sit down, child. और इसी वजह से हम सब चाहते हैं कि आप जो है आराम से वहां पर बैठ जाओ, रिलैक्स करो. I'm not a child, I tell you. वल्ली कहती है कि मैं बच्ची नहीं हूं, मैं बता देती हूं तुम्हें. I tell you. She talks like this. Said irritably, I'm 8 years old. Irritably means the way the people like they were talking to her. उनसे वो irritate हो जाती है और उनको बोलती है कि भाई मैं 8 साल की हो चुकी हूं. Of course, how stupid of me. 8 years, my. Let's stop this by now. Avi, is it enough for today? और इस बात पर वो कहता है कि भाई मैं कितना बेवकूफ हूँ. How stupid of me, कहता है भाई 8 years, 8 साल की हो चुकी हो आप. Okay, let's see. Next, we'll see in the next lecture.